Assalamu alaikum everyone. So Montessori method is the next one we are going to discuss in early childhood education methods. And Montessori education is an educational approach developed by Italian and a physician and educator Maria Montessori. और ये नाम जो है बहुत recognizable है within the ECE world. Montessori education is practiced in an estimated 20,000 schools worldwide. ठीक है? So overview देखते हैं कि what is basically the Montessori education. So it is characterized by an emphasis on independence, freedom within limits, and respect for a child's natural psychological development. Although a range of practices exist under the name Montessori, the Association Montessori International and the American Montessori Society cite these elements as essential. So, what are the basic features which are essential? These one. So mixed age classrooms होते हैं with classrooms for children aged 2.5 or 3 to 6 by far the most common. So ये इसकी age limit है. फिर इसमें स्टूडेंट चॉइस ऑफ एक्टिविटी होती है विद इन द प्रेस्क्राइब रेंज ऑफ ऑप्शंस. इसका मतलब है कि डिस्प्ले कर दी जाती हैं वो एक्टिविटीज़ विद इन रीच होती हैं. बच्चों के पास चॉइस होता है कि वो कौन सा कब तक कौन सी एक्टिविटी परस्यू करें. देन अनइंटरप्टेड ब्लॉक्स ऑफ वर्क टाइम. ये नहीं कि आधे आधे घंटे की या 40 मिनट्स या इवन 1 घंटे के पीरियड्स हैं, बट बल्कि जो एक्टिविटीज़ बच्चा करना चाह रहा है उसको फिर अनइंटरप्टेड टाइम दिया जाता है और उसमें वो बेशक वो 2 घंटे लगे 2.5 घंटे लगे बच्चे जो हैं उसी एक्टिविटी को मास्टर करते हैं, एंजॉय करते हैं, उससे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो टीचर्स अवेल करते हैं. अ कंस्ट्रक्टिविस्ट और डिस्कवरी मॉडल कि बच्चा जो है वो ये एक्टिविटीज़ करते हुए नहीं मटीरियल्स के थ्रू जो है डिस्कवरी करें और उससे उनकी लर्निंग हो, where students learn concepts from working with materials rather than by direct instruction. अब इस तरह से नहीं कि सबको बैठ के पढ़ाया जा रहा है. तो इसमें आप ये देखें इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, एक होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन नहीं है. फिर जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो जिसकी वजह से बाकी चीज़ें पॉसिबल हैं वो है स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल मटेरियल्स डेवलप्ड बाय Montessori एंड हर कोलैबोरेटर्स. ठीक है. अच्छा, अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख ली जाए कि Montessori began to develop her philosophy in 1897 है. So in 1907 she opened her first classroom in a tenement building in Rome. From the beginning, Montessori based her work on her observation of children and experimentation with the environment, materials, and lessons available to them. She frequently referred to her work as scientific pedagogy. ठीक है. Montessori education spread in 1911 और बाकी influences बताए हैं. You can read this on your own. Montessori education theory की तरफ आते हैं because we have limited time. Montessori education is fundamentally a model of human development and educational approach based on that model. The model has two basic elements. First, children and developing adults engage in psychological self-construction by means of interaction with the environment. यानी psychological जो development होती है वो किस तरह possible होती है of how you interact with the different material and different people in the environment. Second, children, especially under the age of 6, have an innate path of psychological development कि जिसको support करना उनकी environment में उनकी environmental जो भी caretakers हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो उस psychological development को support करें. Based on observations, Montessori believed that children at liberty to choose and act freely within an environment prepared to her model would act spontaneously for ऑप्टिमल डेवलपमेंट. इसका ये मतलब है कि अगर आप केयरफुली प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट उनको ऑफर करें जिसमें उनके लिए अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल्स मौजूद हों तो बच्चे खुद से फ्रीली दे कैन चूज एंड एक्ट फ्रीली. ये इस चीज़ पे ध्यान कि इसमें बच्चों की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है. चूज एंड एक्ट फ्रीली कि वो उसमें से वो चीज़ें एक्वायर करें और वो चीज़ों के साथ खेलें या इंटरेक्ट करें इस तरह से कि उनकी बेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट जो उनके लिए अप्रोप्रिएट है वो पॉसिबल हो जाए. अच्छा, ह्यूमन टेंडेंसीज की क्या बात की है Montessori ने कि ह्यूमन बींग्स में कुछ यूनिवर्सल इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के कि जो ह्यूमन टेंडेंसीज इसने कहा और वो जो है सभी उनका ख्याल भी रखते हैं और उनको हमें डेवलप करने पे जो है तवज्जो भी देनी चाहिए. सो सेल्फ प्रिजर्वेशन कि हर कोई अपना ख्याल, अगर एक जगह से नुकसान हुआ दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे. ओरिएंटेशन टू द एनवायरनमेंट, ऑर्डर के एनवायरनमेंट के हिसाब से आप जिस तरह की आपको तरबियत दी जाती है, जिस तरह की आपको एक्सपोजर दिया जाता है आप उसके हिसाब से ओरिएंट हो जाते हैं, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब को ढाल लेते हैं. और इस तरह से अगर हम सर्दी गर्मी देखें तो इफ विंटर्स होंगी सो यू पुट ऑन समथिंग एंड यू प्रिजर्व योर सेल्फ टू और अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना आप जो है वो डेली
क्या कहते हैं कि आपके जो वेयर है, आपकी क्लोथिंग है, आपका रहन सहन है, आप खिड़कियां बंद कर लेंगे, कंबल वगैरह बाहर आ जाएंगे. सो यू आर अडेप्टिंग योर सेल्फ टू द एनवायरमेंट. ऑर्डर यू वांट योर एनवायरमेंट टू बी इन अ सर्टन ऑर्डर बेशक वो चीज़ों का हो, लोगों का हो, कि हर पर्सन का एक जो रोल है वो उस तरह से उसको अदा कर रहे हों, और जिस चीज़ की जो जगह है वहीं पे वो चीज़ मिले. फॉर इंस्टेंस अगर आपके किचन की चीज़ें आपके वॉशरूम में चली जाएं, सो यू विल बी कि क्या मसला हो गया है, और वाइस वर्सा. ठीक है. सो यू नीड एंड चिल्ड्रन नीड ऑर्डर, और इस ऑर्डर के हैबिट को कल्टिवेट भी करना चाहिए, मेंटेन भी करना चाहिए, और रिस्पेक्ट भी करना चाहिए. दैट एक्सप्लोरेशन की आदत, बच्चा भी देखें बगैर कुछ कहे नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है. कम्युनिकेशन इज़ अ बेसिक नीड. कम्युनिकेट भी करते हैं, फिर जिस तरह की आप लैंग्वेज सिखा लें वो सीखते जाएंगे, बिकॉज देर इज़ अ बेसिक नीड टू लर्न the language for communication, so they'll learn whatever language is exposed to them. Work also prescribed as purposeful activity. तो बच्चे जो भी काम कर रहे होते हैं within that environment, वो उनका work होता है, वो काम होता है, कोई purposeful activity है. बेशक एक बच्चे को आप एक चाबी और ताला पकड़ा दें, now the child will try to open the lock in some way. Although उसका कोई purpose आपको नजर नहीं आ रहा, but for that child there is a certain purpose to it कि उसने successfully उसको open कर लिया, and that is an achievement. और इसी तरह से play को incorporate करके जो है बच्चों की लर्निंग और एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए. मैनिपुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, आप उसको सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड. आप उसके अलावा उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, सेफ्टी ला सकते हैं, उसको इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं. सो यू कैन कंप्लीटली कंट्रोल एंड मैनिपुलेट. कंट्रोल इसलिए नहीं कहते कि कंट्रोल में ये आ जाता है कि आप कोई फ्री विल या चॉइस नहीं दे रहे, आप बहुत हर चीज़ को लिमिट कर रहे हैं. मैनिपुलेशन का वर्ड इस तरह से यूज होता है कि आप उसमें इंट्रोड्यूस करें वो चीज़ें जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल हैं, फिर बच्चा उसको यूटिलाइज करे. तो ये मैनिपुलेशन. फिर एग्जैक्टनेस की जिस तरह से कुछ चीज़ों का ऑर्डर होता है, वो भी जो है ह्यूमन बीइंग उसी तरह से उसको चाहते हैं और फिर उसी तरह से उसको फॉलो करते हैं. तो ये एग्जैक्टनेस उनको बताई जाए कि किस तरह. फॉर इंस्टेंस अगर हम स्पीच में ही देखें तो देर इज़ अ सर्टेन एग्जैक्टनेस इन हाउ वी एड्रेस आवर एल्डर्स एंड हाउ वी एड्रेस आवर जूनियर्स. सो वो जो है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन उसी तरह से ऑब्जर्व किए जाएं तब भी उनकी सक्सेस है, अदरवाइज दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. रेपिटेशन की आदत बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है. व्हाटएवर न्यू यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी और रीड, और द स्किल यू वांट टू एक्वायर, उसकी रेपिटेशन कर करके ही वो एक्वायर की जाती है. और इसके अलावा देयर इज अ सर्टेन एंजॉयमेंट टू. तो एंजॉयमेंट भी होती है रेपिटेशन करने से. फॉर इंस्टेंस आपकी जो फेवरेट स्टोरी बुक्स हैं, आप उनको बार बार जो है पढ़ेंगे, पढ़ना पसंद करेंगे, तो दैट रेपिटेशन गिव्स यू प्लेजर. कोई चीज़ आपकी फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर है, यू वांट टू eat it repeatedly because you gain a certain joy from it. Okay. देन एब्स्ट्रैक्शन की भी आपको आदत है. हर चीज़ कॉन्क्रीट नहीं होनी चाहिए. ह्यूमन साइकोलॉजी में एब्स्ट्रैक्शन की कैपेसिटी होती है. सो वंस यू हैव एन आइडिया और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग, यू डोंट नीड टू सी इट और हैव और होल्ड इट और टच इट और स्मेल इट. यू कैन थिंक इन एब्स्ट्रैक्शन. सो अगर आपसे मैं कहूँ कि देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ बर्गर, तो उसमें ये होता है, तो यू डोंट नीड टू एक्चुअली see or touch the burger to understand what I'm going to say. You understand the concept perfectly well. इसी तरह से बच्चों को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और इस तरह के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, तो शुरू में उनको एक्चुअल कोई ना कोई आप काउंटर्स दे देते हैं या स्टिक्स दे देते हैं या लाइंस ड्रॉ करा के आप पेपर पे करवाते हैं. लेकिन फिर ये कि आप जब प्रैक्टिस हो जाती है और अब आप मेंटल मैथ करने के काबिल हैं. फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको कहूँ 15 और 15 आप जमा करें, 15 15, so you are easily able to add them and say 30. You don't need to see the object, you don't need to draw 30 lines. You can do this in abstraction. Then self perfection. The things you're interested in, you want to be perfect in them. For instance, if you're interested in fashion or makeup even, or driving or certain skill, or cooking or writing, perfection और सबसे बेहतर excellence भी इसको कह सकते हैं, that need is a psychological need in human beings. And the mathematical mind की possibilities human beings में हैं. हर चीज़ में logic, एक pattern, एक certain numerical value आप उसको associate कर दें, फिर आप उसको देखें कि how does this make sense for you. So that is the mathematical mind. And cultivating all these psychological traits and preserving them and offering opportunities to develop these क्या कहना चाहिए characteristics is very important. अब इसमें रोल आप देखेंगे कि फिर prepared environment का आता है, which is a very central concept within the Montessori education. So prepared environment is an educational environment tailored to basic human characteristics and to the specific characteristics of children at different age.
The function of the environment is to allow the child to develop independence in all areas according to his or her inner psychological directives. In addition to offering access to the Montessori materials appropriate to the age of the children, the environment should exhibit the following characteristics. So ये इस किस्म की environment है कि जिसमें psychological needs भी बच्चे की पूरी हो रही हैं और बच्चे की access में सारी चीज़ें हैं, बच्चों को order का तरतीब का पता है, बच्चे खुद से चीज़ लें, खुद से return करें और लेकिन वो environment कैसी हो उसके चंद characteristics ये हैं. Its construction should be in proportion to the child and his or her needs. So if there are certain drawers or chairs or tables, there should be according to the child's size and proportion. There should be beauty and harmony, cleanliness of environment. Okay, this is very important. Order usme ho. Everything should not be mixed and matched. So if there are mathematical supplies on one side, all mathematical supplies which the child may need for a certain activity should be placed together in order. Then the child should be made to understand that if he or she takes those materials, he has to return those in order and put them back और फिर उसकी cleanliness, neatness का भी ख्याल रखें. An arrangement that facilitates movement and activity. So if a certain group of children have to perform an activity on the left side of the room and the materials are placed on the right side of the room, तो constant flow होगा और फिर दूसरे बच्चों की चीज़ें जो है maybe उनके पास पड़ी हों तो देर यहाँ पे आप देखें कि कोई बच्चे जो चीज़ें लेके जा रहे होंगे टक्कर होगी एक दूसरे से, एक दूसरे डिस्टर्ब होंगे, तो अरेंजमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि if the child is working on a certain activity in a certain area, all the materials are in his or her access, उनकी arrangement ऐसी हो कि facilitate हो movement और flow of the activity, खुली जगह उनको मिले, उनकी दूसरों से टक्कर ना हो, दूसरे उनकी वजह से disturb ना हो, तो इस तरह से arrangement की जाए. Limitation of materials so that only materials that support the child's development is included. जिन बच्चों की जो एज हो उसी हिसाब का लिमिटेड मटेरियल उनके पास हो, उनके लेवल से बड़ा मटेरियल ना हो, ताकि ये कि उनको फ्रस्ट्रेशन ना हो कि अभी उनसे बड़ी ये चीज़ है, ये उनसे नहीं हो रहा, बल्कि जो मटेरियल उनके लिए अप्रोप्रिएट है पहले वो उनको मास्टर कर लें, फिर वो अगले पे जाएं. ओके, सो प्लेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो हैं 4 डिस्टिंक्ट पीरियड्स और प्लेन्स हैं मॉन्टसरी के हिसाब से इन ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि इस तरह से आते हैं कि बर्थ टू 6 years, फिर 6 से 12, फिर 12 to 18 एंड देन 18 to 24. तो इस तरह से आप देखें कि 4-4 साल के फ़र्क से ये जो है 6 साल के फ़र्क से ये इन्होंने प्लेन्स बना लिए हैं 4. सो इसमें इन प्लेन्स में अब क्या होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि क्यों डिफरेंट हैं, कि इसमें लर्निंग मोड्स या डेवलपमेंटल नीड्स या इम्पेरेटिव्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इनकी एजुकेशनल अप्रोचेस जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं. सो फर्स्ट प्लेन में क्या है, द फर्स्ट प्लेन एक्सटेंड्स टू अराउंड 6 years of age. During this period, Montessori observed that a child undergoes striking physical and psychological development. लैंग्वेज आ जाती है, चलना फिरना आ जाता है, जो पहले बच्चा एक बिल्कुल डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस उसमें आ जाती है. तो बच्चा इस स्टेज पे कॉन्क्रीट होता है, सेंसोरियल होता है, उसको सेंसेस का इस्तेमाल होता है. लर्नर एंगेज्ड इन द डेवलपमेंटल वर्क ऑफ साइकोलॉजिकल सेल्फ कंस्ट्रक्शन. बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, फैमिली में मैं क्या हूँ, दुनिया में मैं क्या हूँ, मेरे वालदैन क्या हैं. तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन अब उसको साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करता है कि व्हाट एम आई, व्हाट इज माई पर्पस, व्हाट इज माई मीनिंग, मेरा रोल क्या है. तो एक सेल्फ आइडेंटिटी उसकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है. बिल्डिंग फंक्शनल इंडिपेंडेंस. और फंक्शनल इंडिपेंडेंस जो बच्चा पहले क्रॉल नहीं कर सकता, या वो चलना शुरू होता है, भागना शुरू होता है, इंडिपेंडेंटली खाना शुरू होता है, लिखना शुरू होता है, तो ये उसकी फंक्शन जो भी उसने ज़िंदगी में फंक्शंस करने हैं, काम करने हैं, वो उसमें इंडिपेंडेंस हासिल कर लेता है. Montessori introduced several concepts to explain this work, including absorbent mind, sensitive periods, and normalization. So इस स्टेज पे जो कॉन्सेप्ट मॉन्टसरी एजुकेशन के हिसाब से इस फर्स्ट प्लेन के लिए अप्रोप्रिएट हैं वो ये हैं कि absorbent mind. First is absorbent mind के Montessori ने describe किया that the young child's behavior of effortlessly assimilating the sensorial stimuli of his or her environment, including information from the senses, language, culture, and the development of concepts with the term absorbent mind. ठीक है, कि everything which is introduced through the language, senses, culture, और जो भी developmentally उनको experience होता है, they absorb it like a sponge. They have a mind that can absorb so much information and then make sense of it. She believed that this is the power unique to the first plane and that it fades as the child approaches age 6. और ये जो है बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए पॉसिबल होता है, इससे बड़ा होकर उसकी एबिलिटी कम हो जाती है. अब सेंसिटिव पीरियड्स जो हैं व्हाट आर दोस, कि जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टिमुलाई बच्चे को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. In Montessori education, the classroom environment responds to these periods by making appropriate materials and activities available
while the periods are active in the young child. She identified the following periods. अब acquisition of language का period क्या है? Birth to 6 years. यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा language exposure देना चाहिए. फिर ऑर्डर फ्रॉम अराउंड 1 to 3 years, इसमें बच्चे को साफ सुथरा ऑर्डर रखने की, चीज़ें वापस रखने की, चीज़ें ना फेंकने की, फैलाव ना करने की, ये आदत डल जाती है. तो इसको 1 साल से 3 साल की उम्र तक ऑर्डर दे दें कि आपने उसको एक्सपोजर और सेंस और ट्रेनिंग देनी होती है. देन सेंसरी रिफाइनमेंट, तो ये बर्ड्स टू अराउंड 4 years. अब सेंसेस को किस तरह से, आंखों को यूज़ करना है, मुंह को कैसे यूज़ करना है, सेंसेस, इसमें रिफाइनमेंट आ जाए. पहले आप इवन मूवमेंट में आप सेंसेस को, अपने बॉडी को किस तरह से इस्तेमाल करना है, और फिर ये कि आप फाइनली मोटर स्किल्स की तरफ आप आ जाएं. तो ये सेंसरी रिफाइनमेंट का प्रोसेस है. Then interest in small objects, ये from around 18 months to 3 years old. Small objects, छोटे छोटे, कई दफ़ा आप मोती पकड़ा दें, दाने पकड़ा दें, बच्चे बहुत फैसिनेट होते हैं. ज़मीन पे कोई धागा पड़ा होता है, उसको उठा के ऑब्जर्व करते रहते हैं. So small objects, but those that do not harm them, वो उनको इस तरह से इंट्रोड्यूस किए जाएं कि उनको मैनिपुलेट करें, उनको अपनी सेंसेस के साथ समझने की कोशिश करें और उनसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हासिल करें. Then social behavior from around 2.5 to 4 years में वो सोशल बिहेवियर और रोल्स, और मैं कौन हूँ और अम्मी अबू कौन है, फैमिली क्या है, इस तरह के सोशल बिहेवियर के बारे में बहुत सेंसिटाइज्ड होते हैं. देन नॉर्मलाइजेशन. Finally, Montessori observed in children from 3 to 6 years old a psychological state she termed normalization. ये क्या है? Normalization arises from concentration and focus on activity which serves the child's developmental needs and is characterized by the ability to concentrate as well as spontaneous discipline, continuous and happy work, social sentiments of help and sympathy for others. तो अगर ये कि बच्चा जो है वो सारी ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर ले कि उसमें डिसिप्लिन भी आ जाए, हैप्पी वो रहे, वर्क और कंटिन्यूसली वर्क भी करता रहे, फिर सोशल सिंपथी भी आ जाए, दूसरों के लिए हेल्प भी आ जाए, तो ये एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है. ये बच्चे की डेवलपमेंटल नीड है और बच्चे में ये कल्टिवेट किया जा सकता है. जिनमें ये चीज़ें, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं आ जाते, वो फिर नॉर्मलाइजेशन से हट जाते हैं, फिर उनकी कोई आपकी स्पेसिफिक स्पेशल नीड्स जो हैं वो उनमें डेवलप हो जाती हैं. उनको फिर केटर करना, उनका ख्याल रखना और बाद वाली प्लेन्स के लिए उनको प्रिपेयर करना, दैट इज़ अनदर सेपरेट टास्क फॉर द टीचर्स. अब सेकंड प्लेन की तरफ आ जाते हैं. द सेकंड प्लेन ऑफ डेवलपमेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड 6 to 12 years. During this period, Montessori observed physical and psychological changes in children and developed a classroom environment, lessons, and materials to respond to these new characteristics. Physically, she observed the loss of baby teeth and lengthening of the legs and torso at the beginning of the plane, and a period of uniform growth following. फिजिकल चेंजेस जो सेकंड प्लेन में आ रही हैं वो उसने इस तरह से बताई हैं कि टांगे लंबी होती हैं, योर टॉर्सो गेट्स एलोंगेटेड, फर्स्ट द हेड इज़ वेरी लार्ज, लेकिन अब प्रोपोर्शन जो है वो एडल्ट्स की तरह की डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. साइकोलॉजिकली शी ऑब्जर्व द हर्ड इंस्टिंक्ट, हर्ट के जो दूसरे कर रहे हैं वो हमने भी करना है. और द टेंडेंसी टू वर्क एंड सोशलाइज इन ग्रुप्स, बच्चे जो हैं ग्रेगेरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर वो अपने एक्सटर्नल दूसरे लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व भी करते हैं, फॉलो भी करना शुरू हो जाते हैं, एंड दे वांट टू be with friends and children of their own age groups, as well as the powers of reason and imagination. ये भी उनमें ग्रो कर रही है, power of reason and imagination. So इस तरह के बच्चों को, जिस तरह छोटे बच्चों को आप छोटे छोटे रिडल्स दे के फंसा लेते हैं, तो इन बच्चों में लॉजिकल रीजनिंग भी बढ़ जाती है और इनकी इमेजिनेशन भी स्ट्रांग हो जाती है. दे develop an adult like way of thinking. So developmentally, she believed the work of the second plane child is the formation of intellectual independence, of moral sense, and of social organization. So intellectual independence कि वो independently intellectual tasks करने के काबिल हो जाएं, moral sense कि किस तरह से उन्हें behave करना है, अपना behavior भी monitor करें, दूसरों में भी good and bad की उनकी तमीज़ आए, and social organization की respect भी हो और उसको वो follow भी करें कि किस तरह से social order within their environment is existing and which they have to keep to. अब third plane में क्या आ रहा है? It needs from around 12 to around 18 years, encompassing the period of adolescence. अब यहाँ पे puberty भी आ गई. Montessori characterized the third plane by the physical changes of puberty and adolescence, but also psychological changes. Psychological changes क्या हैं कि she emphasized the psychological instability and difficulties in concentration of this age, as well as the creative tendencies and development of a sense of justice and a sense of personal dignity. अब बच्चे जो हैं इस मौके पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस और में कि मुझे मेरी जो है वो इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए और फिर दूसरों के लिए एक सेंस ऑफ जस्टिस, वो इस तरह की उनमें साइकोलॉजिकल नीड्स पैदा हो जाती है. और अगर ये इनकी मीट ना की जाए, पर्सनल डिग्निटी की नीड या सोशल जस्टिस की नीड, तो उनमें फिर इंस्टेबिलिटी या
वो डिफिकल्टी इन बिहेवियर आ सकता है. She used the term valorization to describe the adolescent's drive for an externally derived evaluation of their worth. Valorization is कि आप measure करना शुरू होते हैं कि दूसरों के मुकाबले में मेरी वर्थ क्या है, या मेरा इन्फ्लुएंस कितना है, या मेरी पावर कितनी है. तो बच्चे फिर टेस्ट करते हैं अपने से बड़ों को. जैसे आपने भी देखा होगा एडोलेसेंस टीनेज ईयर्स में भी बच्चे जो हैं वो अथॉरिटी को भी टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, फिर अपनी लिमिट्स को भी चेक करते हैं कि अच्छा मैं कितना, आई कैन गेट अवे विद व्हाट और व्हाट नॉट. और फिर ये कि मैं, मेरी अपनी वर्थ क्या है, मैं दूसरों की वजह से ना हूँ, मैं खुद अपनी, मेरी एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाए. ये वो स्टेज है. Developmentally, Montessori believed that the work of the third plane child is the construction of the adult self in society. तो यानी ये जो है, this is the beginning of the construction of the adult self, कि जिस तरह उसने सोसाइटी में रहना है, थर्ड प्लेन पे ये स्टार्ट हो गया. फोर्थ प्लेन में the fourth plane of development extend from around 18 years to around 24 years. Montessori wrote comparatively little about this period and did not develop an educational program for the age. She envisioned young adults prepared for their experience in Montessori education and the lower levels ready to fully embrace the study of culture and sciences in order to influence and lead civilization. तो इसके हिसाब से फोर्थ प्लेन में जो है अडल्ट वो तभी सक्सेसफुल होगा कि जब एक साउंड बेसिस बनेगी थ्रू द फर्स्ट थ्री प्लेन्स, और वो रोल इन द सोसाइटी जो है वो एक्वायर कर लेंगे और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ भी चले जाएंगे. ठीक है जी. अच्छा, इसमें जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं ये एजेस टू बर्थ, एजेस बर्थ टू 3 years. अब ये डिफरेंट एजेस हैं, ये आप देखें. इन्फेंट एंड टॉडलर प्रोग्राम्स क्या हैं, प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन प्रोग्राम्स क्या हैं, एजेस 6 to 12 क्या हैं, एजेस 12 to 18 क्या हैं. फिर मॉन्टेसरी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी है कि ऑथेंटिक वर्ड हो, वर्क हो आपका, और ऑथेंटिक ट्रेनिंग मेथड हो, इसकी मिक्सिंग ना हो, इसका कॉन्सेप्ट, ये सब आप लोगों ने अब ज़रा खुद से देखने हैं. ये अब आप लोगों को मैं टास्क कहूँगी. ठीक है. सो जितना हम लोगों ने इकट्ठे कर लिया, ये प्लेन्स हम लोगों ने कर लिए. सो इस यहाँ से पेज जो 4 है, इससे आगे से आप लोगों ने ये खुद पढ़ना है एंड विल डिस्कस दिस इन आवर क्लास. और अभी मैं जो दूसरे नेक्स्ट वाले हैंड आउट्स हैं वो भी आपको इंट्रोड्यूस करा लेती हूँ ताकि मज़ीद आपको अपने टास्क समझने में आसानी हो. So these are the slides I've shared with you. 7.2 the Montessori approach, और इसका मैंने आपको handout 7.1 के थ्रू चुके बेसिक एक ओवरव्यू दे दिया है. So you will have to complete these set of slides on your own. मैं आपको एक वैसे इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि what is discussed within these. So आपको बेसिक एक Montessori approach के बारे में बताया जाएगा. मारिया मॉन्टसरी जो है उनका लाइफ स्केच भी इस पे मौजूद है, और उनकी वही जो अर्ली हमने बैकग्राउंड देखी, that is also included in the slides. So you'll have to study these. Then a basis of Montessori education philosophy. So at its core the philosophy जो है मारिया मॉन्टसरी की, that's pretty simple, which is to follow the child, which assumes that every child is a unique individual who is naturally driven to grow, develop, and learn. The educational goals include instilling in children a love of learning, the ability to make appropriate learning choices, and respect for oneself, others, and the physical surroundings. ये वाली बात हमने पहले भी की. सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, लर्निंग भी है, कम्युनिकेशन नीड, एग्जैक्टनेस, ये सारी चीज़ें वो जो है वो फिलोसफी की बेसिस हैं. सो इसके एजुकेशनल आइडियाज़ हैं कि फीबल माइंडेडनेस ऑफ द चाइल्ड विद ड्यू टू द डलनेस ऑफ द सेंसेस. तो बच्चा जो है कमज़ोर इसलिए होता है कि उनकी सेंसेस डल होती हैं. वन शार्पन द सेंसेस, उनके माइंड भी स्ट्रांग हो जाते हैं. प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वुड एनेबल देम टू ओवरकम फीबल माइंडेडनेस. फिर डिसिप्लिन मस्ट कम थ्रू लिबर्टी. डिसिप्लिन आए मगर फ्री चॉइस के हिसाब से. उनको डिसिप्लिन डांट और मार और पनिशमेंट से नहीं आना. शी इंट्रोड्यूस अ डायडैक्टिक अपरेटस फॉर सेल्फ एजुकेशन. अब जो उसके मटीरियल्स हैं उनका नाम जो है वो डायडैक्टेड अपरेटस या डायडैक्टेड मटीरियल्स भी कह देते हैं. Education must provide proper training of the senses. She employed 3 methods in achieving the aims of education. Methods क्या हैं? Motor education training of the head, heart and body. Motor education यानी physical. Sensory education with the help of didactic apparatus. Sensory तो आपकी senses, sight हो गई, आपकी smell हो गई और taste हो गया, sound की आपकी ability auditory. Then language teaching consists of desks, small balls, cards with letters pasted. तो ये different materials से आप language training. So motor education जो कि bodily movement को देखे, senses को देखे, और language training. These were the 3 methods within her education.
अब इसमें जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं ऑफ द मॉन्टेसरी सिस्टम वो ये हैं: प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, देन फ्रीडम और लिबर्टी, सेल्फ एजुकेशन और ऑटो एजुकेशन, सेंस ट्रेनिंग, मस्कुलर ट्रेनिंग, मटीरियल रिवॉर्ड, नो मटीरियल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, एंड नो फेरी टेल्स। सो यानी झूठ और फेरी टेल्स को नहीं प्रमोट करना, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यानी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच नहीं यूज़ करनी, बाकी सारी ट्रेनिंग्स जो सेंसेस की भी, मस्कुलर ट्रेनिंग, ये सारी किस तरह से इंट्रोड्यूस करनी है, विल टॉक अबाउट दिस। सो शी बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज पेक्यूलियर एंड यूनिक, और हर बच्चा जो है वो उसका अपना जर्नी स्पीड रेट होता है, और उनको बल्क करके एक ग्रुप की तरह नहीं आप पढ़ा सकते। तो अदरवाइज कलेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग जो है, इससे बच्चे की इंडिविजुअलिटी और बच्चे की जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए उस तरह से नहीं पढ़ाना, इंडिविजुअली बच्चे को सिखाना है। फ्रीडम एंड लिबर्टी में भी ये है कि देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस और हिंड्रेंस इन द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और बच्चे में उसको फ्री नेचुरल, जब वो बच्चे में जिस चीज़ की लर्निंग की अंदर से तलब पैदा हो, वहाँ पे उसको मटेरियल्स और अपॉर्चुनिटीज़ और जो है डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन दे दी जाए, लेसन्स दे दिए जाएं, मगर इस तरह से नहीं कि फोर्स करके पढ़ाया जाए। सेल्फ एजुकेशन के मटेरियल ख़ास तौर पे ये है कि डायरेक्टर जो उसका ऑपरेटर्स था, तो बच्चे को वो बिजी भी रखते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, जिससे बच्चे में सेल्फ एजुकेशन और लिबर्टी भी, कि लिबर्टी ये कि वो उसको चूज़ करता है कि मैंने इस मटेरियल के साथ काम करना है, ठीक है। और इसमें अगेन उसने ये कहा कि अनडिस्टर्ब्ड बाय अडल्ट इंटरफेरेंस, बच्चे को खुद एक्सप्लोर और डिस्कवर करके अपने आप को एजुकेट करने दिया जाए। इट लीड्स देम टू लर्न द पावर ऑफ मूवमेंट्स, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ये उसकी मटेरियल कैसा है वो भी हम बात करेंगे। सेंस ऑफ ट्रेनिंग क्या है कि हमारी सेंस ट्रेनिंग जो है, दैट इज आवर सेंसेस आर द गेटवेज टू द नॉलेज। She pointed out that senses are very active between the age of 3 and 7. She advocates sensory training इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी। फिर मोटर एफिकेसी, मस्कुलर ट्रेनिंग के हिसाब से फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, रनिंग, वॉकिंग, इसकी भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो डन थ्रू राइटिंग, ड्राइंग एंड स्पीकिंग। और देन नो रिवॉर्ड्स ऑफ पनिशमेंट, कि फोर्स्ड आपने एफर्ट नहीं करवानी है, अननेचुरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव्स नहीं करवाना। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नो फेरी टेल्स। फेरी टेल्स जो हैं वो रियलिटी एंड इमेजिनेशन बच्चों के दिमाग में गुडमुट कर देती हैं, विच इज़ डिबेटेबल, कि बच्चों की सेंस ऑफ इमेजिनेशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए कि वो उन पैरानॉर्मल चीज़ों में बिहेव करना शुरू करें जिसकी वजह से उनको रियलिटी में एडजस्ट करना मुश्किल लगे, ठीक है। और मॉन्टेसरी ट्रायंगल जो बनती है वो स्टूडेंट, पेरेंट या टीचर जो कि केयर गिवर है, और एनवायरनमेंट, इन तीनों से मिलकर बनती है। तीनों का रोल इतना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट की तरफ से उसकी मोटिवेशन और इनर जो ड्राइव है, साइकोलॉजिकल ड्राइव टू लर्न, वो आती है। पेरेंट टीचर जो है उनको गाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, और व्हेन दे आस्क समथिंग तो उनको डायरेक्शन देते हैं। एंड एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे इस तरह से प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट होती है कि जिसमें वो सारे मटेरियल्स और सारी चीज़, सेंसरी मटेरियल्स मौजूद होते हैं, कि जिसकी वजह से बच्चा जो है मेक्स इट, ही और शी मेक्स सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। अच्छा, then children are human beings to whom respect is due. Respect is very important. They are superior to us by reason of their innocence, कि वो innocent है इसलिए हमसे superior हैं, और of greater possibilities of their future, और अभी उनके future में unforeseen बहुत सी possibilities हैं, so we have to respect them, और उनकी self respect को भी उनके अंदर कायम रखना चाहिए। अब ये थोड़ी सी आप लोगों ने ये स्लाइड्स वगैरह खुद से देखनी हैं। सो एनवायरनमेंट की उन्होंने बात की है, अडल्ट की उन्होंने बात की है, फंक्शंस ऑफ द टीचर, तो टीचर एज अ गार्डनर, टीचर डायरेक्ट्रेस, उसने डायरेक्शन देनी है बल्कि लेक्चर नहीं देना, ठीक है। एंड उसके हिसाब से जो है वो डॉक्टर यानी फिजिकल भी देखे उनका, साइंटिस्ट उनके साइकोलॉजिकल मेंटल भी उनकी डेवलपमेंट देखे, और मिशनरी यानी कि उसके हिसाब से मॉरल डेवलपमेंट या रिलीजियस डेवलपमेंट भी साथ साथ हो। फेज इन द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, बच्चों पे एतबार किया जाए, ट्रस्ट किया जाए, और उन पे ये उनको ऑटोनॉमी दी जाए कि वो जो है लर्निंग खुद से करेंगे, और उनमें ये कैपेबिलिटी है, और बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है ये एम्पावर किया जाए, एंड मॉरल क्वालिटीज़ बच्चे में डेवलप की जाए। तो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ द टीचर। ये सारी आप लोगों ने देखना है कि हाउ दिस इज डन। व्हाट इज द मॉन्टेसरी मेथड, इसमें नेचुरल डेवलपमेंट होती है। ये देखें, आप तस्वीर देख सकते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे ऑफर द चाइल्ड। देन क्रिएटिविटी का रोल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट इज क्रिटिकल, अनइंटरप्टेड
कंसंट्रेशन के लिए बच्चों की स्पेसेस और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और चिल्ड्रन शुड बी इन टच विद देयर एनवायरनमेंट. सो अब ये डिफरेंट उन्होंने मॉन्टेसरी जो मटेरियल जहाँ से अवेलेबल हैं उनके लोगोज भी दिए हुए हैं. दीज आर बेसिकली द मॉन्टेसरी मटेरियल्स. एंड इन द नेक्स्ट हैंड आउट टू यू विल बी गिवन द यूज ऑफ दीज मटेरियल्स, और फिर अब आप लोगों को ये टास्क है यू स्टडी दीज एंड इन्फॉर्म मी कि आप लोगों ने क्या पढ़ा. सो इसमें मटेरियल्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, एक्सरसाइज प्रैक्टिकल लाइफ के, जिससे सेल्फ केयर और इंडिपेंडेंस आएगी, और अपना ख्याल रखना, हाइजीन का ख्याल रखना, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है. अब ये प्रैक्टिकल लाइफ मटेरियल्स आप इस तरह के देखें, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. सेंसोरियल के, सुन के डिफरेंट चीज़ों का टेक्सचर, साइज, वेट, कलर, साउंड, स्मेल, वो मटेरियल्स भी आते हैं, और ये सारे उसके सेंसोरियल मटेरियल्स हैं. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दीज एट लेंथ. देन मॉन्टेसरी मटेरियल्स में होल एंड पार्ट ऑफ द होल, उसका कॉन्सेप्ट भी होता है, एंड दे प्ले विद इट, एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट सिखाए जा सकते हैं. फॉर इंस्टेंस इससे आप लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन टॉप ऑफ, बाय द साइड, इन फ्रंट ऑफ, एट द बैक, इस तरह के कॉन्सेप्ट दे सकते हैं. तो अब परसेप्शन ऑफ जो सेंसरी मटेरियल्स हैं उसमें साइज, फॉर्म्स, वेट, टेम्परेचर, और ये सारी आप टैक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन जो है उनको करने की आप दे सकते हैं. मैथ मटेरियल्स को भी आप देखें, नंबर रॉड्स हैं, गोल्डन बीड्स हैं, सैंड पेपर न्यूमरल्स हैं, सैंड पेपर की तरह कि वो जी सेंस का इस्तेमाल करें. फिर ये गोल्डन बीड्स जो हैं ये टेंस एंड स्ट्रिंग्स में होते हैं, या 100 बीड्स होते हैं, या ब्लॉक ऑफ थाउजेंड्स भी होते हैं. तो बच्चों को एक सेंसरी हिसाब से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं, एडिशन सिखाई जाए. ठीक है. 100 बोर्ड भी होता है जिसपे आप सेट कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक सेंस के हाउ मच इज़ 100, कि जब विजुअली बच्चे के सामने होगा कि अच्छा 100 ये है, और फिर 10 100 जो है वो 1000 बन जाएंगे, तो बच्चे को उनकी मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा हो जाता है. देन लैंग्वेज में जो डिफरेंट मटीरियल्स हैं वो फोनिक्स, लेटर रिकग्निशन, बुक रीडिंग, इसको जो है वो करते हैं. लैंग्वेज मटेरियल्स में अब आप ये भी देखें कि दे हैव टू मैच, दे हैव टू ट्रेस, ड्रॉ, मूवेबल अल्फ़ाबेट, उसको मैनिपुलेट भी वो कर सकते हैं. फिर इंसर्ट्स के मैच करके लगाएं कि इसने कहाँ जाना है, फिक्स करना है. तो खाली यानी कि लिखने से, खाली पेंसिल एंड रेजर्स से नहीं, बल्कि डिफरेंट तरह की इंटरेक्शन विद द मटेरियल से वो चीज़ें कर भी सकते हैं. और उसमें सेल्फ करेक्शन भी होती है. सेल्फ करेक्शन फॉर इंस्टेंस जैसे ये राइटिंग इंसर्ट्स हैं, अब इसमें ये वाला पैटर्न ओवल का इसी ओवल में जाएगा, किसी और में नहीं जाएगा. तो अगर वो गलत तरह से ये एक्टिविटी करेंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि देयर इज सम मिस्टेक, एंड दे विल ट्राई टू करेक्ट देमसेल्व्स विदाउट इवन द टीचर बीइंग रिक्वायर्ड टू करेक्ट देम. ठीक है ना. अच्छा, कल्चर एंड ज्योग्राफी ट्रेनिंग भी होती है, डिफरेंट मैप्स और वेयर देयर कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड हाउ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड, और उसके लिए भी डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं. फिर उन जोग्राफिक एरियाज के हिसाब से वहाँ पे किस तरह के हु एम आई एनिमल कार्ड्स हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स, वहाँ के नेटिव जो हैं उनकी एजुकेशन भी होती है. म्यूजिक के लिए भी, एंड अगेन दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड टू इवन मोटर स्किल्स एंड सेंसरी स्किल्स. और प्रैक्टिकल लाइफ और वाटर एक्टिविटीज़ में भी ये देखे उन्होंने, पोरिंग, मेजरमेंट, साइंस के कॉन्सेप्ट्स, कलर, ये भी सिखाए जाते हैं. एंड वील डू दीज हाउस होल्ड मटीरियल्स का इस्तेमाल, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है, और मेजरमेंट एंड साइंटिफिक पर्पसेस के लिए भी होता है. सो यू आर गोइंग टू कंप्लीट दीज हैंड आउट्स ऑन योर ओन, एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन इंशाल्लाह. ठीक है. So I'll share the materials with you, and I'll assign the task 2 in the group, and you can complete this and get back to me. Thank you.